Hello everyone. Today we are going to start our next chapter, that is the necklace of pearls. Now your chapter, the necklace of pearls. Okay. Dear students, you know who is very important in our life. Obviously mother and father both are important. Excuse me, wait a minute. Mother and father both are important in our life, but with whom we are more attached? Obviously with mother we are more attached. Some are more attached with their fathers, but mostly we are more attached with our mothers. Okay, and who in your family do you think that who can go to any extent for you? Okay, now this is the story. The necklace of pearls is a story of a mother, about mother's love, how a mother brings her son back from what a nymph. Okay, now this story, the necklace of pearls, is a story of Francisco, his mother, and a water nymph. Okay, now Francisco was a very handsome boy. Okay, in the whole parish. There was a poor in the whole parish. Parish means area under a church. There was a lady, there was a poor woman. She was very poor and she had only one son. His name was Francisco. What was the occupation of Francisco? Francisco was a fisherman. Okay, he goes out for fishing, and when he brought fishes from the sea, then he used to sell those fishes in the market, and that was his livelihood. This mother has only one son. Okay, Francisco was the only son of his mother. Now, what happened one time, Francisco was very smart with his fair skin, blue eyes, and a thatch of curly golden hair was his attributes. Okay, was his characteristic. He was very handsome. But one day many ladies, many maidens means a young unmarried girl, many maidens used to cast smile upon him, but he didn't notice those smiles. Okay, बहुत ज़्यादा girls क्या थी, बहुत handsome था तो बहुत ज़्यादा girls जो थी उसको smile करती थी, but he didn't notice that. वो कोई notice नहीं करता था. He had only two things in his mind. His eyes were only for two things. उसकी eyes से दो things को देखती थी. One, his fishing boat, and other, his mother. So mother and Francisco both loved each other very dearly, और वो उनकी very happy and comfortable life थी. One day what happened, Francisco was not able to sleep properly in the midnight. Okay, due to moonlight. रात को क्या होता है, फ्रांसिस्को को नींद नहीं आ रही होती है, and फ्रांसिस्को जो moon था, that was shining so bright that Francisco was not able to sleep properly. उसकी वजह से फ्रांसिस्को सो नहीं पा रहा था, और वो अपनी मदर को बोलता है कि मदर, आई वॉन्ट टू गो फॉर फिशिंग. क्यों? बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी ड्यू टू दिस मूनलाइट. अब मदर तो थी, वो बहुत आराम से सोई हुई थी, तो मदर बोलती है कि मदर को थोड़ा डर लगता है, बिकॉज the mother didn't want the boy to go for fishing at night, because Francisco had never gone to fishing at night before. Okay, then तो मदर उसको बोलती कि नहीं, तो यू विल नॉट गो फॉर फिशिंग एट दिस टाइम. पर वो मदर को मना लेता है एंड वो फिशिंग के लिए चला जाता है. देन व्हाट हैपेंड, वहाँ पर एक वाटर निम्फ होती है. ओके, मेन करेक्टर दिस वाटर निम्फ. ओके, वहाँ पर एक वाटर निम्फ वाज देयर, और वाटर निम्फ क्या करती थी, वो वाटर निम्फ जैसे और मेडन्स थी, दे यूज्ड टू कास्ट स्माइल अपॉन फ्रांसिस्को. तो ये वाटर निम्फ थी, शी ऑल्सो यूज्ड टू कास्ट स्माइल. बट व्हाट हैपेंड वन डे, जो फ्रांसिस्को था वो फिशिंग के लिए जाता था, और वाटर निम्फ भी वहीं पर रहती थी. बट क्या होता था कि वाटर निम्फ वाज नॉट विजिबल इन द डे टाइम. ओके, इन द नाइट शी वाज विजिबल. सो फ्रांसिस्को डिडंट नोटिस दैट. अब फ्रांसिस्को के साइड में वो बैठी रहती, बहुत टाइम तक बैठी रहती थी, लेकिन फ्रांसिस्को को वो दिखती नहीं थी. क्यों? क्योंकि वो दिन के समय विजिबल नहीं होती थी. सो फ्रांसिस्को को वो दिखती नहीं थी. देन व्हाट हैपेंड, लेट अस सी दैट. Okay, your page number 44. Now, अब उसको नींद, he was this thing, he was going for fishing at night, and जब वो जाता तो उसे बहुत नींद आ जाती है, and he felt fast asleep in his boat. Then what happened? Then
अब वो देखती है वाटर निम्फ, बिकॉज वो रात को दिखती थी, शी वॉज देयर, वाटर निम्फ उसको देखती है और उसको लगता है कि हिज बोट माइट क्रैश विद द डेंजरस रॉक्स, तो फटाफट जाती है और वाटर निम्फ उसको बचा लेती है। पहले उसके हो जाती है तो देखती इन द बोट ही वॉज स्लीपिंग, फिर वो जाती है और उसको ले लेती है अपनी आर्म्स में और अपने पैलेस में लेके चली जाती है। अब लेट अस सी व्हाट इज रिटन। अब जब वो अपने पैलेस में उसको लेके चलती है तो नेक्स्ट डे क्या होता है, द नेक्स्ट मॉर्निंग उसका जो पैलेस था दैट वाज अंडर द ओशन। The next morning, Francisco's empty fishing boat was found by the fisherman. For hours, his mother had been watched in vain for his return. When at last she heard that the empty boat had been found, he was nearly wild with grief. Then what happened one day? The next day, Francisco he was taken away by this water nymph. अब उसकी बोट दूसरे दिन मिलती है तो his boat was empty और सारे बोट में देखते हैं कि फ्रांसिस्को was not there। अब मदर को बहुत टेंशन हो जाती है, तो मदर बहुत ज़्यादा ग्रीफ, शी वॉज नियरली वाइल्ड विद ग्रीफ। देन वो बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है, क्योंकि बिकॉज वो बार बार बोलते कि ही वॉज द वेरी गुड सन, बेस्ट सन ऑफ दिस वर्ल्ड, और बहुत अच्छा था, बट ड्यू टू मिसफॉर्च्यून आई हैव मिस्ड हिम। नाउ अब फ्रांसिस्को अब वो जो फ्रांसिस्को था, ही वॉज इन द पैलेस ऑफ वाटर निम्फ। और वाटर निम्फ क्या करती थी, शी हैड लॉन्ग हेयर, लॉन्ग ट्रेसेस थे उसके, एंड शी यूज टू, वो अपने ट्रेसेस उसके इतने लंबे थे तो वो अपने पाँव को छुपाने की कोशिश करती थी, बिकॉज उसके पाँव तो नहीं थे, शी हैड अ फिशिंग टेल, तो उसको क्या करती थी, अपने बालों से, ट्रेसेस से उसको छुपाने की कोशिश करती थी। देन व्हाट हैपेंड वन डे, जब फ्रांसिस्को ऐसे घूम रहा होता है, वहीं पर होता है, तो अब काफ़ी टाइम निकल जाता है। देन मदर एंड समवन एडवाइज्ड हिज मदर टू गो टू द वाइस मैन ऑफ द सी। अब मदर वाइस मैन ऑफ द सी, फर्स्टली शी श्रग्ड हर शोल्डर्स, वैसे शोल्डर्स श्रग कर दी थी कि शी वुड नॉट गो, लेकिन जब उसको लगता है हर सन इज़ नॉट एबल टू कम बैक, तो वो अपने वाइस मैन ऑफ द सी के पास जाती है। अब वाइस मैन ऑफ द सी के करेक्टरिस्टिक्स ऐसे बताएं कि वाइस मैन ऑफ द सी एक लंबी सी क्लिफ में था और उसकी बियर्ड इतनी बड़ी थी कि दूर से दिख जाते थे। अब वाइस मैन ऑफ द सी के पास जब वो जाते हैं तो वाइस मैन ऑफ द सी बोलते हैं कि व्हाट डू यू वांट, देन ये बोलती है मदर, ओके लेट अस सी फ्रॉम दिस। अब मदर बोलती है कि माय सन, आई वांट टू नो अबाउट माय सन। अब उस दिस वाइस मैन ऑफ द सी बोलता है कि योर सन इज सेफ। अब वो पूछते हैं कि माई सन इज सेफ, देन वाई शी इज़ नॉट कमिंग बैक, क्यों वो वापस नहीं आ रहा है, ही इज़ अलाइव और डेड। तो वो बोलता है वाइस मैन ऑफ द सी, ही इज़ अलाइव और वो यहाँ से बहुत दूर है, एक वाटर निम्फ के पास है, और वाटर निम्फ इज गिविंग पोशन, एक मैजिकल पोशन दे रही है। ड्यू टू दैट Francisco had forgotten everything about his mother, about his fishing boat, about his village, because he is under the spell of that magical potion. अब मदर बोलती है कि how I should get my son back, अब अपने बेटे को वापस कैसे ले। Then what wise man of the sea, अब wise man of the sea उसको क्या advice करता है, let us see. The wise man smiled gently as he raised his hand. Listen, my child, your tears must be shed upon the bosom of the waters. Bosom means heart of the water. If by chance, one of them should fall upon your son's heart, there is the palace in the water nymph in the depth of sea, the power her phylactery will be broken. Okay, now this advice was given by wise man of the sea that Francisco's mother had to shed more tears. Okay, बहुत ज़्यादा उसको tears निकालने थे, but due to that tears, उसमें कोई भी tear जो था वो फ्रांसिस्को को के हार्ट को सपोज वो टच हो जाता तो वो वाटर nymph का जो phylactery था, मीन्स वो जो जादू था उसका, वो टूट सकता है। ओके नाउ तब मदर क्या बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा आई विल शेड मोर एंड मोर टीयर्स, वो बोलती है मैं बहुत ज़्यादा टीयर्स गिराऊंगी ताकि मेरा बेटा जो है वापस आ जाए। देन व्हाट हैपन, अब एक्चुअली वो the fact is that she began to shed tears then and there even before she had thanked the wise man of the sea for what he has told her. अब now what happened with फ्रांसिस्को, अब फ्रांसिस्को कहाँ था, वाटर निम्फ के पास था। इन दैट पैलेस, वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा पर्ल्स थे, डायमंड्स थे, बहुत ज़्यादा जेम्स के साथ दैट पैलेस वाज फुल। वहाँ पर एक बहुत बड़ी
थी, एक फिश होती थी, और फिश जो थी वो वहाँ पैलेस के बाहर होती थी. देन वाटर निम्फ यूज टू से, अगर तुम्हें यहाँ से फ्रांसिस्को, इफ यू वांट टू गो आउटसाइड टू रोम, यू कैन सिट ऑन दिस फिश, और तुम चक्कर लगा सकते हो, बाहर जा सकते हो. बट फ्रांसिस्को वॉज मोर इंटरेस्टेड इन दैट एन्चांटिंग पैलेस. तो वो बोलते कि इससे पैलेस से तो कोई बोर नहीं होगा और वो वहीं पर रहेगा. लेकिन ऐसा क्या होता है कि एक दिन सडनली उसको कुछ होता है कि वो विदाउट अवेकनिंग वाटर निम्फ, वो फटाफट क्या करता है, उसके ऊपर बैठता है, फिश के ऊपर, और वो फिश को बोलता है कि जितना फास्ट तुम जा सकते हो उतना चलो. वो बोलता है क्विक, ही क्राइड टू इट, लेट टेक मी होम एज फास्ट एज यू कैन. My mother's heart is breaking. She has shed so many tears for me. I know that by this time she may be entirely blind. अब वो बोलता है कि जल्दी से चलो, क्विक चलो, क्योंकि मेरी मदर ने बहुत ज़्यादा टेयर्स ऑलरेडी शेड कर दिए, एंड बाय द टाइम लास्ट में क्या होगा, वो शी मे बिकम ब्लाइंड. अब in another hour Francisco was safe at home with his mother's arms around him. ओके, अब दूसरे तो एक अनदर दूसरे आर में क्या होता है, ही वॉज बैक इन एट हिज होम, और अपनी मदर के पास होता है. अब मदर इतने ज़्यादा, शी हैड शेड सो मेनी टीयर दैट शी वॉज नॉट एबल, उसको पता नहीं चलता, उसकी आईज इतनी स्वोलन हो जाती हैं कि उसको पता नहीं चलता. शी डिडंट नोटिस कि उसका बेटा जो है, हर सन हैज़ कम बैक. पर अब वो इतनी भी कंप्लीटली ब्लाइंड नहीं थी कि वो चमक नहीं सकी अपने बेटे को देखकर. प्रॉमिस मी वन थिंग नाउ, व्हाट दिस इज डूइंग, मदर इज डूइंग. अब मदर उसको बोलती है कि यू हैव टू प्रॉमिस मी दैट यू विल गिव अप फिशिंग, तुम्हें अपनी फिशिंग छोड़नी पड़ेगी, प्रॉमिस मी दैट. सो फ्रांसिस्को गेव अप फिशिंग बिकॉज his mother made him promise that. अब मदर उसको बोलती है कि तुम फिशिंग करने नहीं जाओगे बिकॉज she don't trust वाटर निम्फ एनीमोर. अब वो मान जाता है बिकॉज वो अपनी बोट अपनी मदर से बहुत प्यार करता था. सो ही एग्रीड. अब क्या करता है, फिशिंग छोड़ देता, अब वो हंटर बन जाता है, अब वो हंटिंग करना स्टार्ट कर देता है. देन accordingly Francisco gave up being a fisherman and became a hunter. To make his spears, he gathered the young saplings. Saplings mean chote plants, which grew on the hillside even down to the edge of the water. Okay, now अब धीरे धीरे he had grown more handsomer. Okay, then अब वो बहुत ज़्यादा, actually he had already totally forgotten about the water nymph. क्यों? क्योंकि his heart was touched by his mother's tears. तो उसको water nymph का याद नहीं होता कुछ भी कि कोई water nymph भी थी. बट वाटर निम्फ क्या थी, वो हमेशा सी शोर के पास आती थी सो दैट शी शुड हैव अ ग्लिम्प्स ऑफ दिस फ्रांसिस्को. बट फ्रांसिस्को हैड टोटली फॉरगॉटन हर. नाउ अब बहुत ज़्यादा थी मेडन, दे यूज टू कास्ट स्माइल्स अपॉन हिम, लेकिन सिर्फ एक रिच मैन की डॉटर होती है हु एट लास्ट वॉन द हार्ट ऑफ द फ्रांसिस्को. देन अब वो रिच मैन की डॉटर थी, और रिच मैन ने बोला था कि whosoever will give expensive gift, जो एक्सपेंसिव गिफ्ट देगा मेरी बेटी के लिए, माई डॉटर विल मैरी टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, कि मेरी बेटी उसी के साथ मैरिज करेगी. अब ये फ्रांसिस्को वॉज अ हंटर, फ्रांसिस्को के पास इतना कुछ था नहीं, तो फ्रांसिस्को एक बर्ड जो उसने खुद मारा होता, शिकार किया होता, उसको दे देता है यंग दिस टू रिच मैन. अब रिच मैन उसको देखकर बहुत हंसता है, तो वो बोलते हैं कि मेरी बेटी, व्हेन माय डॉटर मैरिज इट शैल बी ओनली टू अ यूथ हु कैन ब्रिंग हर रिच गिफ्ट्स. उसी के साथ मैरिज करेगी जो उसको एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लाएगा. फ्रांसिस्को वेंट अवे विद अ सैड हार्ट एंड सैट अपॉन द रॉक्स एट. अब फ्रांसिस्को बहुत दुखी हो जाता है, ही वॉज वेरी सैड, और वो जाता है और सी शोर के साइड में बैठ जाता है, वो वाटर की तरफ देखता रहता है. ठीक है, और उसकी हिज आईज वर फुल ऑफ टीयर्स, उसकी आईज इतनी टीयर्स के साथ भरी होती हैं दैट ही सॉ नथिंग, उसको कुछ पता नहीं चलता. द वाटर निम्फ, अब उस टाइम क्या था, वाटर निम्फ वॉज नॉट सो फार, वाटर निम्फ वहाँ से दूर नहीं थी, और वो उसको देखती है और एकदम उसका हार्ट पहले खुश होता है, देन उसका हार्ट बहुत दुखी हो जाता है. क्यों? क्योंकि उसके हार्ट का पता चल जाता है कि इन हिज हार्ट वो क्यों दुखी है. शी केम टू नो, अब उसको लग जाता पता. तो वो क्या करती है, एक दूसरे दिन जब वो सी शोर के पास आता है, तो वो क्या करती है, अपने एक बहुत सुंदर सा नेकलेस होता है, दैट वाज द नेकलेस ऑफ पर्ल्स, वहाँ पर वो छोड़ जाती है. ओके, देन the next morning when Francisco went to get wood to make a new spear, okay, new spear भाला बनाने जाता है, he found the necklace of
प्राइसलेस पर्ल्स लाइंग ऑन द शोर। तो वो शोर के पास देखते हैं बहुत महंगा प्राइसलेस पर्ल एक नेकलेस होता है। इट वॉज द गिफ्ट ऑफ द वाटर। अब वो वाटर नेम का गिफ्ट था, वो फटाफट लेता है, उसको उठाता है, बट हिज हार्ट वॉज टच बाय द मदर्स टीयर। तो वो इंटायरली यू नो दिस थिंग ही हैड फॉरगॉटन हर। वो फटाफट गिफ्ट लेता है और उस रिच मैन के घर की तरफ चल पड़ता है। एंड with never a thought of the giver, मतलब वो सोचता नहीं कि मुझे किसने दिया है, और वो उसको उठा के चल पड़ता है। ओके स्टूडेंट, दिस वाज द स्टोरी ऑफ लव बिटवीन मदर एंड his son and water nymph also. Thank you students.